Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, so I wanna introduce someone to you, Mr. Anamol Hawk, sir. He was ex-FPDCL General manager. I was a general manager in the PDCL. I have been in powerhouse, and I have worked in distribution sector also. And distribution sector, generally I did tendering process. So if any problem against tendering process, how to construct a substation, how to prepare an estimate, in that line, if you want to have some knowledge, I can share with you. and sir will guide you people in your non-technical part, aptitude, reasoning, or mathematics. General Mathematics. I can share everything with you. Okay. And he has just retired this year as GM Electrical. GM Electrical in APDCL. From Bijli Bhavan. Yes, I was in Bijli Bhavan for the last 17 years. Before that, I was in Bongaigaon Thermal Power Station, and distribution sector. I was in Mirja Electrical Division. Then I was I did tendering process, and then I went to rural electrification. So in this span of 34 years, I have a lot of experience which I can share, and I hope it will benefit you also. If anybody has any question to sir, you can ask right now. सर एस्टिमेशन कैसा चलता है सर अभी 2021 SOR से चल रहा है ना सर? Yes, 2021, but estimate is like that. If you have to visit the site and see the configuration, and then you prepare an estimate, then the deviation will be a minimum. That is very important. Estimate can be prepared by anybody, but when you implement that estimate in a practical way, suppose you take a pole 300 numbers for the line. Sir. For a line, if you prepare and estimate 300 numbers, and by the time when you construct it, you will see it will cross 370. So that is not an estimate, correct estimate. So that's वो तो span line देख के बनाते हैं ना सर? Span line देख के, area देख के, कैसा area होगा, that is very important. If it is a marshy land, so you have to put civil works much higher than the normal one, because you have to do the piling and all these things. Village road, if you use, then you have to put some compensation there. You have to put compensation. So that's why you have to prepare an estimate. And if depending on the conductor, you have to use those channels and all these things. Throughout my career, I have seen people who prepare estimate always forget 3-4 things. वो क्या सर? नहीं 3-4 आइटम भूल जाता है. जब प्रैक्टिकली हम लोग करने जाता है तो देखता है ये आइटम नहीं है, वो आइटम नहीं है, टेंडरिंग करने में ये गलती हो जाता है. So people used to get offended. Or seniors used to get offended, chairman used to get offended. Why so much of deviation in the estimate? Why have you prepared so clumsily? इसलिए estimate बनाना, tendering process करना, ये सब बहुत important है. And tendering is perfect when the estimate is perfect. हाँ सर. और सर ये पार्टी सप्लाई और उसका डिफरेंस क्या होता है सर? जो नहीं पार्टी सप्लाई एक्चुअली क्या होता है, बोर्ड जब पार्टी सप्लाई क्या होता है, बोर्ड का कुछ नॉर्म्स होता है, and that takes a lot of time. Because we cannot procure the moment we get the money, we cannot procure. We have to go through a process and then procure the materials.
that takes a हाँ lot sir. of time. So the Hmm. the consumer or the customer who wants a line, जी sir. we Hmm. just to give him permission that you can buy the specific with this specification from that, so that he can get the line within 2-3 months. Otherwise, it takes 3 months or 6 months, 1 year Hmm. also sometimes. हाँ सर समझ गया सर इसलिए. हाँ हाँ, इसलिए हम लोग पार्टी सप्लाई दे देते हैं, क्योंकि हाँ. अभी हमको पैसा मिलने से हम जाके खरीद नहीं सकता, हमको टेंडरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, हाँ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, हाँ जी सर. हाँ, इसलिए हम लोग कभी कभी पार्टी सप्लाई दे देता है, तो पार्टी सप्लाई इज गुड. यस सर वही बिल्कुल सर. हाँ, क्योंकि एक इन्वेस्टर आके पावर चाहिए उसके, तो ही वांट्स फर्स्ट, हाँ उसको जल्दी चाहिए, तो जल्दी चाहिए है तो उसको दे देना है, जो यू बाय फ्रॉम दिस अप्रूव्ड लिस्ट, these are the specification of that transformer, you buy that transformer, you buy pole, तो इसलिए सर जल्दी ट्रांसफॉर्मर कौन सा प्रेफर करता है सर, वो एल्युमिनियम वाला या कॉपर वाला? ना ना ट्रांसफॉर्मर नाउअडेज पावर ट्रांसफॉर्मर तो कॉपर वाला ही चाहिए. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, करने डिस्ट्रीब्यूशन से. में अभी ना ना डिस्ट्रीब्यूशन में अभी सब कॉपर ही लगता है, क्योंकि अभी लेवल 2 वो लेवल 2 तो वो एल्युमिनियम हाँ है ना सर? नहीं, एल्यूमिनियम भी है, बट वी प्रेफर कॉपर वन. तो वो लेवल 3 होगा. नहीं, लेवल 2 भी होता है कॉपर में आजकल, अच्छा ठीक है सो प्रॉब्लम नहीं है वो सब. जी सर. So anyway, whenever you need, you just put some questions to our No, sir will be taking sessions also. sessions also. Okay, no problem. Sir will be there for joining, and regarding this PDCL exams, you will be having maths part, general maths part. जनरल मैथ्स आप जो चाहिए हम हेल्प कर देंगे, और आई विल जो लूप होल्स है वो सब हम ट्रिक्स सब बता देंगे. And the most important question that you people ask me, that when the notification will be coming, you can ask him, because he was in PDCL individually, but I was not sure. You will ask No, me. actually what happened, the last time there was some this thing, no, scam type thing. So people are very, the officers are very reluctant. They are just passing the ball to the MD level. And now since the ministry level has taken up these things, they are, वो ओएसडी था ना सर, दीपंकर देंगिया, yeah. वो अभी वो है क्या नहीं, APDC? वो तो अभी तक सस्पेंशन में ही है, ओ रेइंस्टेट नहीं हुआ है, और मालूम नहीं केस अभी चल रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर द इनिशिएटिव. सर एक्चुअली टॉपिक क्या असल में मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा लेट में ज्वाइन कर रहा हूँ कि असल में सर समझ नहीं पा रहा. नो टॉपिक नहीं है ये, बस ऐसे जनरल डिस्कशन. ये नहीं, जनरल डिस्कशन है. आई जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ दैट व्हेनेवर यू नीड, I will take some classes of maths and all these things. If you have some problem, you can ask. और maths problem तो general maths है, वो सबको तो मालूम ही है. ओके सर. Okay. Okay then. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, let's. So, good evening from my side. Everybody came? Good evening, sir. Good evening, sir. So, शुरू करते हैं. हम लोग क्या कर रहे थे? सेमीकंडक्टर्स ना?
We started semiconductor yesterday. Is my screen visible? जी Yes, sir. Yes, sir. Okay. So भाई हमने सेमीकंडक्टर में क्या देखा था कि सेमीकंडक्टर क्या क्या टाइप का होता है? सेमीकंडक्टर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है Extrinsic. सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। Impure. हाँ, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर हम सिलिकॉन में बोरोन का डोपिंग करेंगे या फिर आपका कोई एक दूसरा पेंटावेलेंट एलिमेंट का डोपिंग करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। वही सेम सेमीकंडक्टर ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कुछ इम्प्यूरिटी मटेरियल ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटी मटेरियल क्या क्या टाइप का हो सकता है? ट्राइवेलेंट हो सकता है या फिर पेंटावेलेंट हो सकता है। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। लास्ट डे हमने देखा था कि एनर्जी गैप कितना होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा। फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप कितना था बताओ? व्हाट वाज द एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन? 1.1 electron volt. At 300 Kelvin. Yes, exactly. So And temperature 1.21 electrovolt at 0 Kelvin. at 0 Kelvin 1.21 to 1. 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा? 0 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? 273. Minus 273. Minus 273. माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और so at room temperature this is 300 degree Kelvin मतलब क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, that we call room temperature. This is your absolute zero, this is your room temperature. Similarly energy gap for germanium हमने देखा था कितना होता है? जर्मेनियम 0.72 at 300 Kelvin. यार कॉपी खोल के देख के मत बताओ, हाँ दिमाग में है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। सो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 300 केल्विन पे, और 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारा 0 केल्विन, है ना? कार्बन का कितना होता है? 5 electron volt. 5 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्बन का, है ना? 5 उसी रेंज पे रहता है मतलब। तो कार्बन जो है उसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। सिलिकॉन और जर्मेनियम का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए दे एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है आर्टिफिशियल या फिर डोप सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या करता है? एनर्जी गैप को डिक्रीज करता है। डोपिंग डिक्रीजेस एनर्जी गैप, और डोपिंग क्या करेगा? कंडक्टिविटी क्या करेगा? अगर एनर्जी गैप डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। सो डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जैसे डोपिंग डिक्रीजेस और इंक्रीजेस एनर्जी गैप और कंडक्टिविटी, इस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, डोपिंग डिक्रीजेस द एनर्जी गैप, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या तो पी टाइप होगा या फिर एन टाइप होगा, है ना? सेमीकंडक्टर्स में हमने पीरियोडिक टेबल लास्ट में डिस्कस किया था, और पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 13, 14 एंड 15 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि मेटालॉइड होता है। बोरोन मेटालॉइड है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटालॉइड है, एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटालॉइड है। टोटल मेटालॉइड 7 होते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब हो गए
इनका वैलेंसी क्या रहेगा, क्या बोलेंगे हम इसको, ट्राइवेलेंट, है ना। एंड ग्रुप 15 मतलब पेंटावेलेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना है, 5 है, पेंटावेलेंट। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3, तो ट्राइवेलेंट, याद रहेगा। सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एंड इधर हो गए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन मतलब क्या था, 3, लेड, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, 20 मार्क। क्लियर। नाउ लास्ट डे हमने डिस्कस किया था व्हाई only germanium and silicon and why not other elements from group 4a or 14, group 14 और group 4a, सबका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 14 का, सबका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही हम लोग मेटालॉइड्स बोलते हैं या फिर मेटालॉइड की तरह बिहेव करता है, और बाकी और कोई नहीं करता है ना। वी यूज ओनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एज क्या, सेमीकंडक्टर मेटल। सो फॉर एग्जांपल कार्बन का क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है तो फिर इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, ठीक है। बाकी कुछ एलॉय हम लोग सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं फॉर सम स्पेशल पर्पस, सच एज these elements not used mostly due to non availability or low availability के कारण, कम होने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कार्बन तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका एनर्जी गैप ही ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। बाकी आप लेड यूज कर सकते हो, और यूज होता भी है, बट फॉर सम स्पेशल पर्पस यूज होता है, दैट इज नॉट नन ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ। क्लियर। नाउ सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम, ये डिस्कस किया था। सिलिकॉन क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का क्या है, सिलिकॉन का अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है, सिलिकॉन का कंडक्टिविटी डेफिनेटली जर्मेनियम से कम है। सिलिकॉन का कंडक्टिविटी क्या है, जर्मेनियम से कम है, क्योंकि सिलिकॉन का अगर हम एनर्जी गैप देखते हैं 1.1 और जर्मेनियम का होता है 0.72, तो डेफिनेटली मेरा जर्मेनियम का कंडक्टिविटी सिलिकॉन से ज्यादा होगा, है ना। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप एनर्जी गैप। ओके, पैरामीटर कल दिखाया था मैंने, थर्मल लिमिट 100 डिग्री होता है, सिलिकॉन का 200 डिग्री होता है, वोल्टेज रेटिंग हाई होता है सिलिकॉन का, करंट रेटिंग हाई है, पावर रेटिंग हाई है, और अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है सिलिकॉन का, इसीलिए सिलिकॉन को हम लोग प्रेफर करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कितना होता है, 2n square. हो गया ना गड़बड़, गया एक नंबर तुम्हारा, 8 sir. 8 होता है। मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट शेल में 8 ही होता है बिंदु। इन एनी शेल इट इज योर 2n स्क्वायर। किसी भी एक शेल में हो सकता है, वो फर्स्ट शेल हो, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ है, सेवेंथ है, तो वो होगा आपका 2n स्क्वायर। लेकिन किसी भी शेल का आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ऑक्टेट, इसको ऑक्टेट बोलते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होता है, वही हमने देखा था, इसीलिए हमने सबशेल्स में डिवाइड किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होगा वो 8 होगा। ये गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल 8, और इन एनी शेल इट इज 2n स्क्वायर। क्लियर। The amount of energy in quantum, एनर्जी जो हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वो कैसे जाता है, क्वांटम में जाता है। एनर्जी कितना होता है, h इज कॉल्ड क्या, h क्या है बताओ, व्हाट इज h, Planck's constant. प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू बताओ, इंपॉर्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। 8.854
6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second होता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। सो लिख के रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता है और प्लैंक कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट ही है, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि एक क्वांटम में कितना एनर्जी हो रहा है, कितना एनर्जी आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है। सो द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, हायर इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग लाइट एमिट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे बॉम्बार्ड कर रहे हो, और उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी होगा, एनर्जी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब, अगर हायर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो फिर क्या करेगा, एमिट करेगा, और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा। सो एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब in the form of light or heat. Electrons can absorb energy only in the form of light or heat. So the amount of energy emitted or absorbed when an electron jumps from one energy level to another energy level is, कितना एनर्जी होता है पता है? Anybody? कितना एनर्जी रिलीज करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है? So अगर किसी दो ऑर्बिट का एनर्जी मुझको पता है, सो दैट एनर्जी इज योर h into f। नाउ किसी भी एक ऑर्बिट्स में, इसको क्या बोला हमने कि ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट 1, पकड़ लो ये एक शेल है, यहाँ पे कुछ एनर्जी ये पोजेस कर रहा था W1, ये एक शेल है यहाँ पे पोजेस कर रहा है W। सो एनर्जी गैप कितना है भाई, वही इतना एनर्जी अगर दे दोगे, hf एनर्जी अगर इसको मिल जाएगा तो ये जंप कर जाएगा W2। तो W2 का एनर्जी लेवल, एनर्जी माइनस W1 गिव्स यू द एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज। क्लियर? तो एनर्जी होता कितना है किसी भी एक ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, पकड़ लो ये L शेल में है, ये M शेल में है, या फिर हो सकता है ये N शेल में है। तो किसी भी एक शेल में, किसी भी एक ऑर्बिट पे टोटल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी होता है माइनस 21.76 इंटू 10 टू द माइनस 19 जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। टोटल एनर्जी, ये फॉर्मूला लिख के रखो। WN energy possessed by an electron in the nth shell। अब वो n equal to 1 2 3 4 5 6 7 7 शेल होता है, 7 पीरियड है, तो 1 2 3 4 कोई भी एक शेल का आप एनर्जी निकाल सकते हो। अब किस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ ये हो गया हमारे जोल में, टोटल एनर्जी है जोल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जोल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जोल। 1.6 into 10 to the minus 19. 1.6 into 10 to the minus 19 जूल, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल, आपको पता है कितना जूल होता है इलेक्ट्रॉन का, तो डिवाइड कर दो 1.6 से, तो क्या आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इतना एनर्जी वो पोजेस करेगा। सो जोल में है इसलिए हम लोग W से इसको रिप्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने से एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? लिख कर रखो। हो गया?
तो यहाँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डाटा है। नंबर 1, E is equal to H into F। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.6 into 10 to the power of minus 34 जूल सेकेंड। 34 जूल सेकेंड। और एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, किसी भी एक ऑर्बिट पे जो टोटल एनर्जी होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है? माइनस 21.76 into 10 to the power of minus 19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में अगर आपको एनर्जी दिया हुआ है, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 यूनिट column। कूलम। सो 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम होता है किसी भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब बोल रहा हूँ तो फिर कितना हो जा रहा है? 1.6 into 10 to the minus 19 जूल। ठीक हो गया? क्लियर ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसको देखने में क्या है, चलो देखिए इतना एनर्जी लेता होगा, सीख लेंगे, मतलब नहीं है। अभी अगर रेगुलर बेसिस पे आप अगर इसी चीज को देखते हो, डेली एक बार नोट करते रहते हो, अच्छा इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना जूल का, एनर्जी कितना होता है किसी भी एक ऑर्बिट पे, तो वो जरूरी है। nth ऑर्बिट पे एनर्जी कितना होता है बताओ? एनर्जी कितना होता है nth ऑर्बिट पे? कितना होता है? Minus 13.6 जेड स्क्वायर सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर आप जूल्स में निकाल सकते हो। जूल होने से माइनस 21.76 10 to the minus 19 है ना, 10 to the minus 19 ये रहा 10 to the minus 19। चलो ठीक है, इसमें से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आता है। नाउ एनर्जी बैंड के बारे में हमने बात किया था कि ग्राउंड स्टेट मतलब के बैंड जो एकदम लोअर स्टेट है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और फिर किसी भी दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है उस गैप को हम एनर्जी गैप बोलते हैं। वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं? वैलेंस बैंड वो बैंड है, बताओ वैलेंस बैंड बताओ, वैलेंस बैंड क्या है? पेज टर्न नहीं करते, पेज टर्न highest highest energy level where at least where all electrons are paired and no unpaired electron exists. Yes, exactly. Highest energy level where no unpaired electron exists, मतलब सारे के सारे पेयर में मिलेंगे आपको। पेयर में मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, है ना। सो उस बैंड को हम लोग नीचे से जब देखेंगे ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो जिस बैंड पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही होगा, वो बैंड होगा। फिर से याद रखना एनर्जी लेवल, और यहाँ पे हम लोग एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे एटम मिलके बन जाता है। सो बैंड वो होगा हमारा बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या था कि लोएस्ट एनर्जी लेवल फ्रॉम टॉप से जब हम आते हैं तो लोएस्ट एनर्जी लेवल वेयर एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यहाँ पे एटलीस्ट एक अनपेयर्ड। अब अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच पे एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड और बैंड गैप बोलते हैं।
और it is the empty region. ये जो जोन है ना, ये एनर्जी का जो एनर्जी लेवल है, देखो यहाँ पे कुछ एक एनर्जी है, पकड़ लो W बोलो या फिर E1 W1 बोलो इसको, या फिर EV बोलता हूँ WV और EV, इतना एनर्जी यहाँ पे है हाईएस्ट मैक्सिमम। फिर यहाँ से कंडक्शन बैंड ये हो गया मेरा WC और EC कंडक्शन एनर्जी का। तो ये जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में, इस एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एनर्जी उतना हो, उस लेवल पे रहेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है एनर्जी गैप और बैंड गैप और फॉरबिडन बैंड। सो द एम्प्टी region between valence band and conduction band where no energy level exists. No energy level exists मतलब क्या है कि no electrons is present in that particular band. Clear? कि वहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड योर फॉरबिडन बैंड और योर एनर्जी गैप। व्हाट इज फर्मी लेवल? फर्मी लेवल क्या है? फर्मी लेवल क्या है? The highest energy level filled with electrons at absolute zero. So the highest energy level filled with electrons at absolute zero, and the corresponding energy level is called your Fermi level. ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो जहां पे प्रेजेंट है एट एब्सोल्यूट जीरो, उसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? Fermi level बोलते हैं। Now, based on the variation in energy band, the solid shows different electrical properties. You know the three categories क्या क्या होते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर होते हैं। किसके ऊपर बेस करके? यही एनर्जी गैप के ऊपर बेस करके बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, कम है, या फिर ओवरलैप। कंडक्टर के केस पे क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। सो इन प्योर सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज, बोलो ये वाला क्वेश्चन आता है ये था। In pure semiconductor, the Fermi level is Fermi level क्या होता है? At the center of the forbidden gap. Pure semiconductor है तो Fermi level जो होगा कहाँ पे होगा? Conduction band और valence band का बीच पे होगा, ठीक है? In N-type semiconductor, the Fermi level is Above the valence, below the conduction band. N-type में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, so near the conduction band. और in P-type, अच्छा, in highly doped N-type semiconductor, highly doped N-type semiconductor में Fermi level कहाँ पे होता है? In highly doped semiconductor, the Fermi level is at or just below the conduction band. So highly doped semiconductor behaves as conductor. So it is just below the conduction band. In P-type semiconductor, the Fermi level is, P-type में Fermi level कहाँ पे रहेगा? Valence band के करीब पे रहेगा, है ना? So just above the valence band के करीब में Fermi level है। And in highly doped P-type semiconductor, the valence band is the Fermi level is at valence band, ठीक है? So in N-type semiconductor, remember this, the highly doped N-type semiconductor, highly doped होने से क्या होगा? Just below the conduction band, just below the conduction band. और P-type semiconductor में it is at valence band Fermi level. Okay. Now in pure semiconductor,
intrinsic semiconductor, the atoms of pure semiconductors are tetravalent, है ना? Pure semiconductor जो होता है intrinsic semiconductor, atoms are tetravalent. इसके आगे वाला ट्राइवेलेंट, पीछे वाला पेंटावेलेंट. तो पकड़ लो जर्मेनियम का एटम्स हम लेते हैं, सब एक एक जर्मेनियम एटम का बैलेंस पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. तो हर एक जर्मेनियम एटम क्या कर रहा है? अपना दूसरे जर्मेनियम के साथ बॉन्ड शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो फिर शेयर बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. अच्छा, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? एटॉमिक जो बॉन्ड होता है, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो कितने टाइप के होते हैं? एनीबॉडी? कोवेलेंट. अरे कितने टाइप के बोल रहा हूँ, क्या क्या टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 types over. 3 टाइप्स होते हैं. क्या क्या? आयोनिक बॉन्ड, Covalent bond. बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट कर लेगा. जैसे हमने दिखाया था, क्लोरीन का कितना होता है? 7 होता है, 6 7. तो ये सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. तो क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव बन गया. तो ये जो बॉन्ड होगा, दैट बॉन्ड इज योर आयोनिक बॉन्ड. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि भाई तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, तो एक काम करते हैं, दोनों बराबर के हैं तो शेयर करते हैं. तो शेयरिंग बॉन्ड जो होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. भाई आपने डोनेट कर दिया, आपने किसी को दे दिया कोई चीज, जब दे ही दिया है तो क्या ले सकते हो क्या उससे उल्टा? नहीं ले सकते हो, आपने दे दिया ना उसको. या फिर आपने किसी से ले लिया है एकदम से, वो लिखित दे दिया कि भाई तू ले जा, तो दैट बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं. किसी दिन भी आप अपना हम अपना, समझ रहे हो कि आपको दिया तो नहीं है हमने, चलो शेयर में यूज करने को दिया है, जब कभी मन करेगा मैं उठा के लेके अपना चला जा सकता हूँ. सो कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करता है एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन. तो कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर एंड आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ मेटल्स के केस पे जो कंडक्टर्स होते हैं वहां पे आएगा, वो बाद में देखेंगे, उससे हमारा अभी मतलब नहीं है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड दिख रहा है हमको जर्मेनियम का, वो क्या है? दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, ये सब क्या है? क्योंकि दोनों जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. तो इसने बोला एक काम कर, तू भी यूज कर, मैं भी यूज करता हूँ, दोनों मिल बांट के करते हैं. तो जर्मेनियम का हो गया, ये हो गया मेरा प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना? कोवेलेंट बॉन्ड है. And each covalent bond shares 2 valence electrons, one from each germanium. So अगर कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, so जर्मेनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हो, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32. जर्मेनियम का कितना है? 32. so इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हो, कैसे था? 1s2 2s2 2p6 हो गया मेरा 8 और 2 10, फिर 3s2 3p6 एंड देन कौन आ जाएगा बीच में? 4s2. आउटर मोस्ट शेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. 4s2 आ गए, उसके बाद 3d10 एंड 4p2. ठीक है? हाँ, नाउ यू सी 1s1 1s2, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा.
फिर 2s एनर्जी लेवल, यहाँ पे 2s1 2s2, फिर 2p एनर्जी लेवल, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p6, सो 2p1 2p2 2p3। जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो सारे के सारे पहले फिल हो जाएंगे क्लॉकवाइज, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं है कि पहला 2 आया 2p1 एंड 2p2 तो यहाँ पे ही पेयर बना दिया, नहीं होगा। सो 2p1 एंड 2p2 होगा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे आपको। 2p3 होगा तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे। जब 2p4 हो जाएगा तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, these unpaired electrons are responsible for your magnetic behavior। तो वो देखेंगे हम लोग बाद। तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या कहते हैं इसको, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने से पैरा या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बने, देखेंगे हम लोग बाद। तो 3p6 हो गए, 3p6 3d10। अब 3d10 में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा? नहीं आएगा। पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 4s पे जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में चला जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे हो गया 2, उसके बाद 3d10 बढ़ेगा, पहले 5 इलेक्ट्रॉन उसके बाद 5, क्लियर? उसके बाद 4p2, ये रहा हमारा 4p। समझ में आया सबको? तो ये हो गए मेरे जर्मेनियम का एक क्या कहते हैं इसको, एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जर्मेनियम का एक एटम। अब देखो ये जो 4p शेल है उसमें उसको अगर पूरा का पूरा फिल होना है, कोई भी एटम कब स्टेबल होता है? जब उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये चाहेगा ना मेरा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी कितना है इसमें? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है ना। सो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ये चाहता है कि मेरे पास और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो अपने जो दोस्त है वहां से ले लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो नेक्स्ट जो एनर्जी शेल होगा वो कितना शेल होगा भाई? वो 5s होगा, 4p6, उसके बाद 5s भरेगा, क्लियर? 4p6 के बाद 5s पे जाएगा। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी गैप मिलेगा 5s पे, तो दैट एनर्जी गैप इन बिटवीन योर 5s and 4p, the energy gap is your 0.785 electron volt at 0 Kelvin। और 300 केल्विन पे कितना होता? 300 केल्विन पे 0.72
Okay, sorry for. So हम लोग कहाँ पे थे? ये एनर्जी गैप जो है कितना होगा? 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप दिखेगा, है ना? क्लियर? एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड इज फील्ड. यहाँ पे देखो 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड क्या है? यहाँ पे फील्ड है पूरा का पूरा. जब एक एक जर्मेनियम ने और 4 जर्मेनियम के साथ मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बैलेंस बैंड मतलब वो बैंड जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो. तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है मेरे को. तो दैट बैंड इज बाय वैलेंस बैंड. तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर जर्मेनियम का देखते हैं तो वैलेंस बैंड इज फिल्ड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी. नेक्स्ट बैंड कंडक्शन बैंड कौन सा होगा? भाई ये वाला था. कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन? नो इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन कंडक्शन बैंड. कि वैसा एक ऊपर से जब देखोगे नीचे तरफ आओगे तो ऐसा एक एनर्जी लेवल मिले जहाँ पे एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले आपको. नहीं है. क्लियर? एम आई क्लियर? हाँ सर. ओके. तो अभी देखते हैं कि कैसे जब हम हमने क्या देखा? दस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज एन इंसुलेटर. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बैलेंस बैंड फुल है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. बट जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, as the temperature increases, कोवेलेंट बॉन्ड का जो ये है वो थर्मल एनर्जी क्या करेगा? ब्रेक कर देगा कोवेलेंट बॉन्ड को और कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल के वैलेंस बैंड से कहां पे जा सकता है? कंडक्शन बैंड पे चला जाए. ठीक है. यहाँ पे जैसे ही आप से पकड़ लो आपने टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर बढ़ा या फिर रूम टेम्परेचर में आया तो उस सेमीकंडक्टर का बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया 5s पे. नाउ 4p और 5s के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम था इसीलिए जंप कर पाया. अगर यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा होता 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो वो जंप नहीं कर पाता, इसीलिए वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता. समझ में आ रहा है क्यों इंसुलेटर बनता है? कि 4p अगर फील्ड है और इनका बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है. ये तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना एनर्जी गैप होता है. सो अगर ज्यादा होता तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जंप करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता इस टेम्परेचर पे. और जितना एनर्जी पे वो जंप करता तब तक पूरा का पूरा मटेरियल इतना गर्म हो चुका होता कि उसका एवलांच ब्रेकडाउन और वो खत्म. इसीलिए इंसुलेटर क्या होता है कि जब जंप करेगा तो इतना हेवी करंट पास कर जाएगा कि वो पूरा का पूरा इंसुलेटर ही जल जाता है. क्लियर? सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एनर्जी गैप कम होता है इसीलिए वो जंप करके जा सकता है. और अगर वो चला गया तो क्या बनेगा? ये कंडक्टर बन जाएगा, है ना? तो एट 0 टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर, but at room temperature intrinsic semiconductor behave as a conductor. Now temperature increase हुआ, thermal energy increase हुआ, covalent bond टूट गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड. इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड गेट एनर्जी एंड जंप टू द कंडक्शन बैंड. ये जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव हुआ तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया? यहाँ पे हो गया होल, वैलेंस बैंड में होल, और कंडक्शन बैंड में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन. इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव करता है और होल्स बैलेंस बैंड में. यहाँ पे जैसे एक होल हुआ ना तो इस इलेक्ट्रॉन को 4s का इलेक्ट्रॉन के पास एक
ऑप्शन आ गया कि ये यहाँ से इसमें जंप कर सकता है, जगह है तो जंप करेगा, अगर एनर्जी मिल गई है तो जंप करेगा। जब जंप करेगा तो ये होल कहाँ पे आएगा, होल यहाँ पे क्रिएट होगा। आप कलर चेंज करना, होल कहाँ पे क्रिएट होगा, होल यहाँ पे क्रिएट होगा, ये फील्ड हो जाएगा भाई। तो होल जो है, होल कहाँ पे मूव कर रहा है, होल इज मूविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड होल इज मूविंग इन द बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल बैलेंस बैंड में मूव कर रहा है। Thus, this vacancy of electron in the valence band is called hole. Hole behave as a positive charge, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर तरफ जा रहा है, तो होल पॉजिटिव चार्ज नीचे तरफ आ रहा है, हम देख रहे हैं। So hole behaves like a positive charge and moves only in the valence band. Hole conduction band में move नहीं करता है। Remember this, each and every line is important. Okay. So hole current जो है वो बैलेंस बैंड में होल के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, कंडक्शन बैंड में होल नहीं होता है, कंडक्शन बैंड में ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड मूव्स इन द कंडक्शन बैंड गिविंग इलेक्ट्रॉन करंट। सेमीकंडक्टर में हमको दो करंट क्या कहते हैं उसको, दो करंट देखने को मिलते हैं। क्या क्या, एक होल करंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन के वजह से कुछ करंट पास कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कुछ करंट अंदर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर से इधर, इधर से उधर, तो अल्टीमेटली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, बट वी आर कंसीडरिंग इट इज द होल मूविंग इन द बैलेंस बैंड, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में होल का करंट हो रहा है। तो होल करंट पकड़ लो, मेरा होल करंट एकदम एक आर्बिट्ररी में दे रहा हूँ कि 2 एम्पियर और जगह है, 2 एम्पियर का होल करंट है, और आपका कन्वेंशनल करंट आपका 5 एम्पियर है, तो टोटल करंट कितना होगा? सॉरी, कन्वेंशनल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट just a minute, which is can see it. Okay. So hole behaves like a positive charge and moves only in the valence band, giving hole current, and the excited electron moves in the conduction band, gives your electronic current, है ना? तो यही चीज हमको देखने को मिलता है जब हम लोग कोई भी एक ये बनाते हैं। आप पीएन जंक्शन बनाओगे, इधर से होल मूव करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो सारा चीज होगा। एंड जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि फील्ड के डायरेक्शन पे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन।
इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ऊपर तरफ, होल किधर जा रहा है, नीचे तरफ, ठीक है। सो कंस्टिट्यूट द करंट फ्लो इन द जर्मेनियम क्रिस्टल। तो ये बात क्लियर हो गई। द सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए कंडक्टर। कब? जब हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए क्या कहते हैं इसको, कंडक्टर। ओके, चलो अभी ये देखते हैं जनरेशन और व्हाट इज जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। बताओ व्हाट इज जनरेशन एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। ओके, व्हाट इज जनरेशन एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कुछ काम है मुझे, क्लास खत्म करेंगे। बोलो भाई, टाइम नहीं। सर पता नहीं। सर ने जाने से चलो, जनरेशन मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का जनरेट होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब निकल के आता है, इन प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल बनेगा, है ना, दो इलेक्ट्रॉन निकला तो दो होल बने। सो कन्वर्स ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन का निकलना, थर्मल क्या कहते हैं इसको, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसको बोलते हैं जनरेशन। और कन्वर्स ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। अगर जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जाते जाते क्या होगा, एक होल के साथ मैच भी हो जाएगा। पॉजिटिव होल है, एक नेगेटिव, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे एक होल बन गया। अब वो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा था, तो होल और इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो जब एक होल में एक इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा तो क्या होगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, वो पेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड योर रिकॉम्बिनेशन, कि जनरेशन हुआ फिर रिकॉम्बिनेशन हो गया। थर्मल एजिटेशन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते जाते हैं, कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो होल बन रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब क्या हो रहा है कि एट द सेम टाइम सम इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद द सम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपीयर्स। क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है, डिसअपीयर होता है। कब कि पकड़ लो, यहाँ पे होल बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब आके इलेक्ट्रॉन और होल मैच हो गए तो दोनों गायब। So formation of new electron hole pair is called generation, and disappear or merge of such pair is called your recombination. Clear हो गया ना अभी, generation and recombination क्या होता है? Am I clear? जल्दी बोलो। Yes sir. Generation मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल बनेगा, और होल पे अगर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो फिर ये डिसअपीयर हो जाएगा, वो होगा रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जनरेशन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। एंड रिकॉम्बिनेशन रिलीजेस एनर्जी, रिकॉम्बिनेशन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और फोटोन ऑफ लाइट। बहुत बार रिपीट किया ये बात, कि जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और जब जनरेशन होगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो हायर एनर्जी स्टेट पे जंप करेगा। Thus, during manufacturing, it becomes necessary to control the recombination to avoid excessive heating of the material. क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा तो फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो मटेरियल जो है मेरा गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा।
गोल्ड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज रिकॉम्बिनेशन एजेंट। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए हम लोग गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज रिकॉम्बिनेशन एजेंट। द टाइम बिटवीन generation and recombination of electron hole pair, that is the time of existence of a hole or an electron, is called mean life। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बना और फिर वो दूसरे होल में जाके गिर गया और डिसअपियर हो गया, तो वो जो टाइम गैप होता है, दैट टाइम गैप इज कॉल्ड योर मीन लाइफ टाइम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन और ए होल। एम आई क्लियर दिस मच? Yes, sir. Yes, sir. ओके आज के लिए यहाँ पे खत्म करूंगा, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे। आई हैव सम अर्जेंट वर्क। ओके सो Okay, sir. बाय बाय फॉर टुडे। आप लोग देखो आज क्या हो गया, आज थर्सडे है ना। ओके नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। Good night, Good night, sir. sir. Right, sir. चलो बढ़िया से।